Now, in today's class, today we will look at two things. सबसे पहले we will finish the topic of banking. उसमें the last topic that is left is insolvency and bankruptcy code. इसके जो concepts हैं that I will explain to you. इसमें there are some things to read. कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आपको पढ़नी है, उसमें there is not a lot of role for me to play. वो आप खुद रीड करेंगे. The second thing that we'll do is we'll start our discussion on capital markets. Capital markets यानी कि शेयर मार्केट. आज हम एक ब्रॉड ओवरव्यू लेंगे कि शेयर मार्केट ऑपरेट कैसे करती है, कंपनीज कैसे चलती हैं, फंडिंग कैसे होती है. ठीक है, एक आधा एग्जांपल लेके हम पहले ये चीज समझेंगे. और मैं आपको काफी सारी वीडियोस देखने का होमवर्क देने वाला हूं. मैं आपको अभी बता देता हूं, योर होमवर्क ओवर द वीकेंड. Let me tell you right now your homework over the weekend. Homework is only to watch these videos. Videos is number 1. Please watch Inside Job. This is about the 2008 financial crisis. Second, please watch Age of Easy Money. अब नाम समझ आ रहा है, Easy Money यानी Easy Monetary Policy. This is about the quantitative easing followed by the US Fed after the 2008 crisis. Please watch this. Both of these are available on YouTube. Third homework, and this homework is after today. Please watch any episode of Shark Tank. Shark Tank का कोई भी एक एपिसोड आपकी मर्जी का देख के आना. आज जब मैं आपको कैपिटल मार्केट्स की इंट्रोडक्शन दे दूंगा, दिस विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू कि शार्क टैंक में एक्चुअली हो क्या रहा है. राइट? तो these are the 3 homeworks. Other than this, ये कंपलसरी हैं. These you have to watch. ये कंपलसरी हैं. इसके अलावा अगर आपका मन है and you are interested, तो you can watch Bad Boy Billionaires and you can watch the documentaries of Vijay Mallya and Sahara Shri. ये आप बाद में देख लेना. You can watch this later. But ये 3, please watch them over the weekend. एक आज देख लो. This is 2 hours movie. Again 2 hours documentary and I think 1 hour of Shark Tank. इससे ज़्यादा टाइम तो आप रोज फोन पे स्पेंड कर ही रहे हो, है ना? तो better to spend it in something that will actually teach you something. चलिए, अब just to give you a small summary, we were reading before the test. We were reading about bank recovery of loans. हम बैंक रिकवरी के बारे में पढ़ रहे थे. So सबसे पहले the first thing that we read in this case was that there was the Indian Contracts Act. But यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी? That there were judicial delays. Then the government came out with the second type of act known as Recovery of Debt Due to Bank Act, RDDB Act. यहाँ पर गवर्नमेंट ने सेटअप करी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स एंड डेट रिकवरी अपेलेट ट्रिब्यूनल्स. और यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब्यूनल्स भी देखा कि ट्राइब्यूनल्स क्यों सेटअप किए गए, और हमने ये देखा कि इस पे साल क्वेश्चन भी आया था. Still, both of these had the problem of judicial delays. And the other problem was that बैंक के पास खुद से कोई राइट नहीं था. बैंक को कोई भी अपना राइट एनफोर्स करने के लिए जाना पड़ता था टू द कोर्ट. तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने कहा that banks need to have 3 rights. One is securitization, that is banks can bring securities into action. Secondly, banks should have asset reconstruction of financial asset का right, कि वो अपने ही फाइनेंशियल एसेट, अपने ही लोन्स को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें, उनको सेल भी कर सकें. एंड बैंक शुड हैव द राइट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. SARFAESI Act of 2002 we saw. Under this act, as you remember, there were the setup of ARC and AMC. इनका बिजनेस रिस्की था, तो इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बैड बैंक भी बनाया. गवर्नमेंट also made a bad bank to set up this, to solve this problem. Even after SARFAESI Act was passed, loan recovery rate in India was hardly 10%. So now to solve the problem further, again one of the best changes brought in by this government brought in something called the Insolvency and Bankruptcy Code. पहली बात है यहाँ पे, what is the meaning of code? What is the meaning of the word code? हमने लेबर कोड्स भी देखे थे.
कोड इज अ सेट ऑफ लॉज, बहुत सारे लॉज थे, उनको क्लब करके मैंने एक जगह पे ला दिया, दैट इज व्हाट इज अ कोड, राइट? So now government brought in insolvency and bankruptcy code, and today recovery rate in India after the passing and implementation of IBC has become about 33% to 50% depending on type of loan. So today we will understand what is the procedure of the insolvency and bankruptcy code and why is this such a good law, ये हम समझेंगे. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. This is also the last topic that we read in banking. ठीक है. So post 2016 new framework of insolvency and bankruptcy code started for quicker recovery of loans. ठीक है. तो अब before I teach you insolvency and bankruptcy code, there are a few terms that we need to understand. Let's say I am running a business. And this business is a शर्ट फैक्ट्री. ये एक शर्ट फैक्ट्री है. ठीक है. अब देखो दिस इज पर्सन 1, नाम ले लेते हैं साध्वी एंड राज. यहां पर है साध्वी. तो साध्वी ऐसे कि साध्वी देखो, आई एम रनिंग द शर्ट फैक्ट्री, मैं शर्ट बनाता हूं, फिर आगे मैं ये शर्ट शॉपकीपर्स को बेचता हूं. आई सेल दिस टू शॉपकीपर्स, शॉपकीपर्स सेल इट टू कस्टमर्स. ठीक है. मैं आपसे खरीदता हूं, लेट्स से आई बाय फ्रॉम यू कॉटन, यू गिव मी कॉटन, आई मेक कॉटन इनटू अ शर्ट, आई सेल द शर्ट टू द शर्ट शॉपकीपर एंड शॉपकीपर सेल इट टू द कस्टमर. ठीक है. तो अब क्या होता है कि मान लो आई हैव टेकन कॉटन फ्रॉम यू ऑन 1 जनवरी, मैंने 1 जनवरी को आपसे कॉटन लिया. ऐसा तो है नहीं कि मैं आज ही शर्ट बना दूंगा, ऐसा तो नहीं है. अब क्या हुआ कि मान लो शर्ट बनाने में मुझे 1 महीना लगता है, सो शर्ट गेट्स प्रिपेयर्ड ऑन 1 फरवरी. Shirt goes to the shopkeeper and the shopkeeper is then able to sell it to the customer on 1st March. Sorry, forgive me guys. 1st March. ठीक है. ये बिजनेस साइकिल है. दिस इज द नॉर्मल बिजनेस साइकिल. नाउ पैसे कब आ रहे हैं? पैसे तो कस्टमर देगा. The customer will give the money. So money comes to the shopkeeper on 1st March. 1st March को कस्टमर शॉपकीपर को पैसे देता है. शॉपकीपर मुझे पैसे देता है लेट्स से ऑन 2nd March and I will pay you back on 3rd March. आपने मुझे कॉटन दे दिया ऑन 1st January and this is very common. अगर आपके आसपास कोई स्मॉल बिजनेस रन करता है, स्मॉल शॉप्स में ये चीज बहुत कॉमन है कि यार पेमेंट साइकिल थोड़ा सा डिलेड है. आपने 1 जनवरी को कॉटन दी बट आपको उसकी पेमेंट 2 महीने बाद 3rd मार्च को मिलती है. और दिस इज हाउ दिस बिजनेस रन्स बिकॉज देयर इज अ डिले इन द एंटायर साइकिल. एवरीबडी फेसेस द इफेक्ट्स ऑफ दैट डिले. राइट. तो ये क्या है? इन दिस केस there was some money that I was supposed to pay to Sadhvi. But I have paid with some delay. तो मैंने साध्वी को कहा कि ठीक है, I have to pay you, let's say I have to pay you rupees 1,000. But all right, it's back now. So just repeating that. आई थिंक आपने यहां तक सुन लिया होगा. तो एक लोन मैंने साध्वी से लिया है, बट द लोन टेकन फ्रॉम साध्वी इज इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ माय बिजनेस. द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ माय बिजनेस हियर इज दैट आई टेक सम क्रेडिट बिकॉज ऑपरेशंस आर एट डिले. तो मैंने सप्लायर से लोन लिया है. द अदर केस इज द केस ऑफ राज. फ्रॉम राज आई हैव टेकन मनी बिकॉज आई वांट टू एक्सपैंड माय शॉप. यहां पर कोई सप्लाई इंटरचेंज नहीं हुई है. This loan is not
This loan is not in context of some supply. Raj does not give me cotton or yarn or machines. मैं बस कह रहा हूँ यार मुझे अपना expand करना है. I want to expand my company and therefore please give me rupees 2 lakh. I will pay you back in 5 years and I will give you a rate of interest of 10%. Right? Now, this first case, the case of Sadhvi, this first case is called operational creditor. Sadhvi here is an operational creditor. Credit is given for her help in the operations of my company. Right? It's the normal operations of my company. Every day, it's day to day, and there is a supply link here. एक supply से चीज linked है. Raj here is the example of a financial creditor. He is merely helping me with finances. He is not my supplier. So these two terms, one term is operational creditor and the other term is financial creditor. Are these two terms clear to you? इनमें difference दिख रहा है? Can you see the difference between operational and financial creditors? Can you see the difference? I can't see your chat, guys. मुझे आप लोगों की चैट दिख नहीं रही है. Anyway, I think it'll get fixed in due course. हम इस पे focus करते हैं. So the point is, there are two types of creditors. One is operational creditor, who has given me loan in terms of regular operations of my business. One is financial creditor that has given me loans in terms of finances for growth, etc. अब यहाँ पर मैंने नाम तो राज का लिखा है, but normally who is in this position? इस position में normally कौन होता है? In this position normally there is the bank. हम generally बैंक से इसी टाइप का लोन लेते हैं. Companies take this loan from the bank that I want to expand my business and please give me some loan, or I want to start a new business, please give me some loan. बैंक हमें इस पोजीशन में जनरली दिखता है. Now, bank is financial creditor, and the biggest problem, or most likely the problem when it arises in terms of non-performing assets, is that people are unable to repay the bank's money in such cases. कि मैंने शर्ट फैक्ट्री के लिए 2 लाख रुपए का लोन लिया, and I suddenly figure out, या suddenly this happens that shirts की डिमांड ही खत्म हो जाती है, or something goes wrong, or people stop buying shirts altogether. If people will stop buying shirts altogether, let's say people stop buying shirts altogether, what will happen? People will say कि ठीक है यार, अब shirts खरीदनी नहीं, my shirts will not sell and I will not be able to repay this loan. मैं यहाँ पर इसको repay नहीं कर पाऊंगा. So a problem will arise now in terms of financial creditors, right? अब second thing, यहां पर जब मैंने बैंक से लेट्स से ये 2 लाख रुपए का लोन लिया है, या राज से भी मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया है, मैंने यहां पर कुछ कोलैटरल लिया होगा, कोलैटरल दिया होगा राज को. आई वुड हैव गिवन हिम समथिंग दैट ओके आई एम टेकिंग 2 लाख रुपीज लोन फ्रॉम यू, तो आप ये पेपर्स रख लो या ऐसा कुछ रख लो, राइट? Now, what rights should the bank have? Bank should have two rights. One is either it should be able to sell the collateral, and it needs to be ensured. ये point ज़्यादा important है. It needs to be ensured that मैंने अपना best try किया हो ये लोन वापस करने का. अब या तो मेरी फैक्ट्री अब बंद ही हो रही है तो अलग बात है, बट कई बार ऐसे होता है that business owners say कि यार ठीक है बैंक का लोन दे देंगे यार, दे देंगे, कोई नहीं, कर लेंगे. Right? It needs to be ensured, and I hope you can understand why this point is very important. It needs to be ensured that I, as the business owner, have done my absolute best efforts to repay the loan. तो एक तो ये चीज इंश्योर करनी है, दूसरी ये चीज इंश्योर करनी है that collateral
collateral should be something that the bank can sell and recover money, and this process needs to be done quickly. This process needs to be done quickly. ठीक है, अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट को याद रखते हुए let us now try and understand the insolvency and bankruptcy code. Let us now try and understand the IBC. Let's see. This is the entire process of IBC. This is the entire process of IBC in one summary chart. Ultimately, this is the summary chart that I want you guys to remember for IBC. For any question on IBC, you can generally answer with this. ठीक है, तो पहले let me show you this entire summary chart. फिर हम इसमें जो चीजें लिखी हैं उसको हम एक पॉइंट को हम देखेंगे. We'll understand every one single point of whatever is written in this chart, and then we'll come back and this chart will be my reference anytime I want to read about insolvency and bankruptcy code. ठीक है, so let's understand. If there is an, अब ये चार्ट पढ़ने के लिए आपको मेरे साथ पहली बार ये चार्ट पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज देयर आर मेनी एरोज एंड मेनी थिंग्स. जब मैं आपको पूरा समझा दूंगा, ऑल ऑफ दिस विल बी क्लियर. सो प्लीज विद द utmost attention in the next 10 minutes listen to this chart. अगर आपने ये चार्ट ढंग से समझ लिया, your entire understanding of IBC will always be absolutely clear. चाहे क्वेश्चन मेंस में आ जाए, चाहे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाए, एक पेज में मैंने IBC को समराइज कर दिया है. See, either it is an individual. जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं या जो चीजें मैं बोल रहा हूं, सिर्फ उन पर फोकस करो. ये जो ग्रीन एरोज हैं, रेड एरोज हैं, पिंक एरोज हैं, ये सब बाद में देखेंगे. एवरी सिंगल वर्ड एंड में ऑल ऑफ इट विल मेक सेंस, बट देयर इज अ सीक्वेंस इन रीडिंग दिस चार्ट. उस सीक्वेंस को समझने के लिए प्लीज मेरे साथ पढ़ना. देयर इज एन इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन है, जैसे मैं हो सकता हूं मी, और अ पार्टनरशिप. दो लोगों ने अपने ऊपर एक पार्टनरशिप बनाई है, दैट इज समटाइम्स कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP. ये टर्म आपने सुनी होगी. और देयर इज अ कंपनी. These three things are there. Either there is an individual, or there is a partnership, or there is a company. इन तीनों में से कोई भी हो सकता है. Which is unable to repay a business loan of more than 1 crore. ये एक या तो इंडिविजुअल है, या एक कंपनी है, या एक पार्टनरशिप है, which is unable to repay a business loan of more than 1 crore. 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस लोन ये रीपे नहीं कर पा रहा है. ठीक है, अब ये लोन इसको किसने दिया होगा? या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का लोन होगा, या फिर ये ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का लोन होगा. यही हो सकता है. इधर इट विल बी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और इट विल बी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. राइट, व्हाट कैन दे डू नाउ? इन दिस केस हम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के एग्जांपल से देखते हैं. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने देखा कि यार ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन है, यहां पर फाइनेंशियल क्रेडिटर इज द बैंक. हमने एग्जांपल देखा फाइनेंशियल क्रेडिटर का, कोई इंसान भी हो सकता है. इवन यू कैन गिव अ लोन टू समवन, वो उस पर कोई मनाही नहीं है. राइट, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने देखा कि यार हम एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं. बैंक ने देखा यार कि कंपनी जो है ना, ये बिजनेस लोन रीपे नहीं कर रही, एंड दिस बिजनेस लोन इज मोर देन इक्वल टू 1 करोड़ इन वैल्यू. इससे छोटा लोन हम इसमें कंसिडर नहीं करते. अब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पास एक ऑप्शन है दैट दे कैन अप्रोच द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT, for the proceeding of insolvency and bankruptcy code. National Company Law Tribunal यहां अप्रोच कर सकता है ये बैंक. सो बैंक गोज टू NCLT and says, सर मेरा एक बिजनेस लोन था, ये लोग रीपे नहीं कर रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट IBC प्रोसीडिंग्स. प्लीज स्टार्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. ठीक है, अब इस ट्रिब्यूनल में किस टाइप के लोग होंगे? देयर विल बी जजेस and there will be executive members who are experts. So judges भी होंगे, executive members भी होंगे. ठीक है, अब once you approach NCLT for IBC proceeding, आप NCLT चले गए for IBC proceeding. So अभी क्या हुआ है, हमारा बैंक जो है उसने कहा यार एक कंपनी है जो लेट्स से 1 करोड़ से कोई बड़ा लोन है जो रीपे नहीं कर पा रही. अब ये बैंक गया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और NCLT को बोला है कि सर प्लीज स्टार्ट IBC प्रोसीडिंग्स. अब NCLT में जज और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बैठे हैं, वो क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं कहेंगे हाँ ठीक है स्टार्ट IBC प्रोसीडिंग.
दे विल फर्स्ट डिसाइड, दे विल डिसाइड कि हाँ यार एक्चुअली ऐसा कोई लोन था, एक्चुअली ऐसा कोई लोन था, और क्या ये जो रिक्वेस्ट रेज करी है ये सही रिक्वेस्ट रेज करी है. तो दे विल फर्स्ट से, first they will decide whether this is a genuine request. Second, let's say they say कि हाँ यार request genuine है. NCLT will send a notice. NCLT एक नोटिस भेजेगा कंपनी को. NCLT एक नोटिस भेजेगा कंपनी को और बोलेगा कि सर, NCLT नोटिस भेजेगा कंपनी को और बोलेगा कि सर, we will start IBC proceedings against you. हम आपके अगेंस्ट IBC proceedings स्टार्ट करने वाले हैं. We are about to start IBC proceedings against you. देख लो, राइट. अब लेट्स से ये हो गया, NCLT has decided, NCLT has also sent the notice and company said कि ठीक है कर लो, ये कर लो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, राइट. These two things, NCLT deciding that this is a valid ask, कि बैंक ने सही बात करी है, एक्चुअली कोई लोन था जो वो रिपे नहीं कर रहे, एंड NCLT का नोटिस देना, ये दोनों चीजें होनी चाहिए विद इन 14 days. Why is a timeline ascribed here? You remember the importance of quick recovery. क्विक रिकवरी कितनी इंपॉर्टेंट है. तो टाइमलाइन दी हुई है कि NCLT को विद इन 14 days ये दोनों काम करने हैं. ठीक है. अब NCLT ने डिसाइड कर लिया कि एक वैलिड पिटिशन है. NCLT ने नोटिस इशू कर दिए कंपनी को, कंपनी ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया. देन NCLT एक्सेप्ट्स कि ठीक है यार, लेट स्टार्ट IBC प्रोसीडिंग्स. NCLT ने एक्सेप्ट कर लिया, IBC प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करते हैं. IBC प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करते हैं. The moment NCLT accepts IBC proceedings, even at this time, company has not paid back a loan. कंपनी ने लोन पे बैक नहीं किया है. बैंक हैज इट्स ओन राइट्स अंडर सरफेसी एक्ट. बैंक के पास कुछ राइट्स हैं अंडर सरफेसी एक्ट. हम कहते हैं कि देखो यार, अब हम IBC में चले गए हैं. NCLT has accepted that we will have IBC. NCLT has accepted that we will have insolvency bankruptcy court proceedings. तो जब NCLT ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि IBC की प्रोसीडिंग्स होंगी, तो ये जो सरफेसी एक्ट है, बैंक के पास राइट्स हैं सरफेसी एक्ट में सिक्योरिटीज को मूव करने का, एसेट रिकंस्ट्रक्शन करने का, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट करने का, राइट. हम कहते हैं फॉर 330 डेज लेट्स प्लेस अ मॉरेटोरियम. मॉरेटोरियम का मतलब होता है रोक दो. 330 दिन के लिए सरफेसी एक्ट की कोई भी प्रोसीडिंग रोक देते हैं. फॉर 330 डेज लेट्स स्टॉप एनी प्रोसीडिंग्स अंडर सरफेसी एक्ट. लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू IBC. ठीक है, यहां तक समझ आया. एक बार स्टोरी रिपीट करता हूं. कंपनी ने बैंक से लोन लिया. कंपनी इज नॉट रीपेइंग. इट इज अ बिजनेस लोन and it is a loan more than 1 crore. Company goes to NCLT. Forgive me. Bank goes to NCLT and says company is not repaying the loan. NCLT first sees कि अच्छा यार, ये एक्चुअली लोन ऐसा कुछ था और ये लोन काम का था या नहीं था. ठीक है, बात तो सही कह रही है कंपनी. सेकेंड थिंग, NCLT इशूज नोटिस. NCLT नोटिस इशू करता है कंपनी को कि सर ये देखो, ये लोन है, हम आपके अगेंस्ट IBC प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे, प्लीज पे इट बैक. कंपनी कहती है सर हम नहीं कर सकते, या कंपनी डजंट रिस्पॉन्ड और व्हाटएवर. ये दोनों काम 14 डेज में होने हैं. अगर 14 डेज में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, 14 डेज में इनमें से दोनों काम हो गए, कंपनी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो NCLT एक्सेप्ट कर लेगा कि लेट्स स्टार्ट IBC प्रोसीडिंग्स. अब अगर IBC की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, तो फॉर 330 डेज नो प्रोसीडिंग्स ऑफ सरफेसी एक्ट कैन हैपन. सरफेसी एक्ट अब थोड़ा टाइम कहेंगे यार इसको रुक जाओ, सरफेसी एक्ट इसको रोक दो. लेट्स नाउ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू IBC. यहां तक तो सिंपल स्टोरी है. अब कहानी है कि IBC में होता क्या है. जैसे ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, IBC प्रोसीडिंग्स हैव स्टार्टेड. सबसे पहले एक चीज बनेगी कॉल्ड कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या है? इसमें वो सारे लोग हैं जिन्होंने कोई भी लोन दिया है इस कंपनी को. whoever has given any
whoever has given any financial credit, whoever has given any financial credit, क्योंकि देखो ऐसा तो होगा नहीं कि कंपनी सिर्फ एक बैंक का लोन रिपे नहीं कर रही, ठीक है। तो मैं आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का पहले एग्जांपल बताता हूं। लेट्स से दिस इज माय कंपनी, शर्ट मेकिंग कंपनी। इसने लोन ले रखा है फ्रॉम HDFC बैंक। HDFC बैंक को इसे लौटाने हैं और दिस लोन फ्रॉम HDFC बैंक इज वर्थ ₹10 करोड़। There is one loan from Axis Bank. This loan is worth 50 crores. There is one loan from SBI. This SBI loan is worth ₹30 crores. And there is one other loan, let's say from Kotak. This loan is worth ₹10 crores. इस कंपनी ने ये 4 लोन ले रखे हैं, राइट। दिस कंपनी इज नॉट रीपेइंग एनी ऑफ दीज लोन्स। ऐसा तो नहीं होगा कि यार एक्सिस का तो रीपे कर देते हैं, SBI का रीपे नहीं करते, SBI का रीपे नहीं करते, कोटक का कर देते हैं, HDFC का कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होगा। कंपनी अगर रीपे नहीं कर पा रही, तो किसी का भी लोन रीपे नहीं कर पा रही। इट इज नॉट एबल टू रीपे एनी ऑफ दीज लोन्स। कंपनी कांट रीपे एनी ऑफ दीज लोन्स। तो सबसे पहले बनेगी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब इस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन लोग होंगे? ये 4 लोग होंगे। इस कमिटी में HDFC होगा, इस कमिटी में एक्सिस होगा, इस कमिटी में SBI होगा और इस कमिटी में कोटक होगा। HDFC का लोन, टोटल लोन कितना है? टोटल आउटस्टैंडिंग लोन इज 100 करोड़। HDFC ने कितना दिया है इसमें से? 10 करोड़। तो HDFC के पास यहां पर 10% वोटिंग राइट्स होंगे। अभी ये वोट्स का क्या करेंगे हम देखेंगे। एक्सिस के पास 50% वोट्स होंगे, SBI के पास 30% वोट्स होंगे एंड कोटक विल आल्सो हैव 10% वोट्स। तो हमने ये समझ लिया कि इस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में वोटिंग परसेंटेजेस आर एज पर द अमाउंट ऑफ लोन दैट यू हैव गिवन। जिसने जितना ज्यादा लोन दिया है उसको उतना ज्यादा वोट मिलता है, राइट। अब वंस द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इज अपॉइंटेड, 1 सेकंड मैं इसको थोड़ा सा बस साइड में कर देता हूं ताकि ये केस आप ना भूलो। Committee of creditors has been appointed. Up. Along with committee of creditors, the second thing that happens in IBC is the appointment of insolvency and resolution professional, IRP. IRP है insolvency and resolution professional. इस इंसॉल्वेंसी और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का क्या काम है? वंस आईबीसी प्रोसीडिंग स्टार्ट, इस शर्ट मेकिंग कंपनी का ओनर मैनेजर मैं था, आई वॉज द मैनेजमेंट। इसकी मैनेजमेंट में कौन था? आई वॉज देयर। वंस आईबीसी प्रोसीडिंग स्टार्ट, एक तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनेगी, दूसरा आई विल बी किक्ड आउट, आई विल बी रिमूव्ड फ्रॉम मैनेजमेंट। मुझे अपनी ही कंपनी की मैनेजमेंट में से हटा दिया जाएगा। मेरी जगह अब मैनेजमेंट में कौन आएगा? द इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल नाउ रन द कंपनी। द IRP विल नाउ रन द कंपनी। IRP इस कंपनी को अब रन करेगी, या IRP इज whoever is that professional is now going to run this company. While running this company, the IRP will come up with something called a resolution plan. रेजोल्यूशन प्लान का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन प्लान? इन दिस रेजोल्यूशन प्लान एक प्लान बनाया होगा कि यार इस कंपनी को, अब इस कंपनी से हमें ये वाले पैसे वापस कैसे लेने हैं, हाउ डू वी हैव टू टेक दिस मनी बैक। ये जो पैसे, ये जो टोटल 100 करोड़ इस कंपनी को वापस पे करने हैं, ये कंपनी कैसे पे करेगी। अब रेजोल्यूशन प्लान में बहुत चीजें हो सकती हैं, राइट। एक चीज हो सकती है कि यार
हम ये शर्ट मेकिंग कंपनी है, हम ये कंपनी ही एडिडास को बेच देंगे, एडिडास विल परचेज दिस कंपनी एंड एडिडास विल देन पे दिस रिमेनिंग लोन। एक प्लान ऐसा हो सकता है कि हम इस कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं वो बेच के देख लेते हैं, कंपनी के पास लैंड है, कंपनी के पास बहुत सारी मशीन्स हैं, वो बेच के देख लेते हैं, जो हम बेचेंगे उससे उससे जो पैसा आएगा उससे हम पैसे वापस कर देंगे। देयर कैन बी थर्ड ऑप्शन कि नहीं यार, ये कंपनी में जो ये डॉक्टर शिवन इसको मैनेज कर रहे थे, ये मैनेजमेंट ही ऐसी थी जो कॉम्पिटेंट नहीं थी, इट वॉज बिकॉज ऑफ द फॉल्टी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट दिस कंपनी वॉज नॉट रनिंग, लेट मी गिव दिस टू सम न्यू मैनेजर। किसी न्यू मैनेजर को लाते हैं, वो कह रहा है कि मैं अगर 2 साल इस कंपनी को चला लूंगा तो मैं सारा लोन वापस दे दूंगा, राइट? एनी ऑफ सच प्लान्स कैन बी फॉर्म्ड। दिस प्लानिंग इज द जॉब ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। आईआरपी का यहां पर काम है कि वो एक रेजोल्यूशन प्लान बनाएंगे। लेट्स से आईआरपी ने कोई एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया, राइट? ही विल टेक दिस प्लान टू द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। इस प्लान को वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास लेके जाएंगे। तो आईआरपी कहेगा सर देखो, मेरे को लगता है आपका 100 करोड़ पैसा वापस होना है, मुझे लगता है कि इस तरह से with this particular plan we will be able to get your money back। अब जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, यहां पर 4 लोग हैं, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इस प्लान को अप्रूव करेगी। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स देखेगी कि इसका 2 ऑप्शन है, या तो वो कह सकती है कि नहीं यार प्लान अच्छा नहीं है, ये वाला प्लान अच्छा नहीं है, मेक अनदर प्लान, या तो ये कह सकते हैं कि प्लीज मेक अनदर प्लान, दिस प्लान इज नॉट डिसेंट। और the other thing they can do is they can say कि नहीं, we like this plan, please execute this plan, we like this plan, please execute this plan। अब यहां पर क्या हो सकता है, लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कहती है कि नहीं यार इस प्लान को एग्जीक्यूट कर देते हैं, वी लाइक दिस प्लान, प्लीज एग्जीक्यूट दिस प्लान, तो प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, बात खत्म, प्लान विल बी एग्जीक्यूटेड, मनी इज रिकवर्ड। सेकंड ऑप्शन यहां पर क्या है, द सेकंड ऑप्शन इज दैट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स सेज दैट नो, मेक अनदर प्लान। अब अगर एक और प्लान बना, हो सकता है जो सेकंड वाला बना उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कहते हैं सेकंड वाला बढ़िया लग रहा है, इसको एग्जीक्यूट कर दो। या फिर ये हो सकता है दैट इट गेट्स फाइनली रिजेक्टेड, कि एक और प्लान बनाया, वो भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कह रही है नहीं ये भी अच्छा नहीं है, एक और बनाया, वो भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कह रही है ये भी अच्छा नहीं है, मतलब कोई भी प्लान बन ही नहीं पा रहा, राइट? ये 2 ऑप्शन है, या तो कोई ना कोई प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक बनेगा वो नहीं होगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, या तो कोई ना कोई एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर फाइनल रिजेक्शन होगी कि यार हमारे लिए तो कोई भी प्लान सूटेबल नहीं है, राइट? अगर एग्जीक्यूट हो गया तो बहुत बढ़िया, इफ इट गेट्स एग्जीक्यूटेड देन ग्रेट, if it gets executed then great, if it does not get executed there will be liquidation and recovery। वो जो हमने सरफेसी एक्ट की प्रोसीडिंग्स रोकी थी, we stopped the SARFAESI proceedings। if it is seen that यार finally no plan can be made to save this company, then under SARFAESI act proceeding will continue, action will be taken under SARFAESI act, एसेट्स विल बी लिक्विडेटेड, और जितनी रिकवरी हो गई होगी, लिक्विडेटेड मतलब कंपनी के सारे एसेट्स कोलैटरल इनको बेच दिया जाएगा, जो लिक्विड मतलब इनको कैश में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब जो कैश आया उस कैश से हम जितनी रिकवरी कर सके उतनी कर दिया, राइट? अब देखो, अब द ब्यूटी ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इज नॉट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में ब्यूटी नहीं है, प्रोसेस तो बढ़िया है, राइट? The beauty is in the timeline। This entire process of appointing of insolvency professional and resolution professional, generally ये काम एक ही आदमी करता है। Insolvency professional means person who will run the company after the removal of the management। मैं था शर्ट मेकिंग कंपनी की मैनेजमेंट ने मुझे हटाया, अब कोई तो चलाएगा उस कंपनी को। Person who will run the company is insolvency professional। पर्सन हु विल प्रिपेयर द रेजोल्यूशन प्लान, जो रेजोल्यूशन प्लान को प्रिपेयर करेगा कि हाउ विल दिस गेट रिजॉल्व्ड, रेजोल्यूशन प्लान को जो प्रिपेयर करेगा उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जनरली बोथ ऑफ दीज एक्टिविटीज इज डन बाय द सेम पर्सन। एक ही आदमी ये दोनों काम करता है, तो वी कॉल हिम
insolvency and resolution professional. We call him IRP. One single person does all of this work. One single person does all of this work, so we call him insolvency and resolution professional. ठीक, अब देखो, अब अगर मैं आपको अब पूरी एक समरी दूं कि हुआ क्या, if I give you a complete summary of whatever has happened, right? There was a company who could not repay a business loan of more than 1 crore. चार्ट से देख लेते हैं. कंपनी हु कुड नॉट, और इंडिविजुअल और पार्टनरशिप, इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होता है, पार्टनरशिप पे भी अप्लाई होता है. इन तीनों में से कोई भी एक चीज थी which was unable to repay a business loan of more than 1 crore, right? इसके जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे वो गए एनसीएलटी और कहा आईबीसी प्रोसीडिंग स्टार्ट करो. एनसीएलटी ने डिसाइड किया, नोटिस इशू किए. विद इन 14 डेज एनसीएलटी ने डिसाइड किया कि हाँ आईबीसी प्रोसीडिंग्स होंगी. द मोमेंट आईबीसी प्रोसीडिंग स्टार्ट, एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनी. ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने बनी और ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वहां आ गया. अब इस जो इंसॉल्वेंसी और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, दिस इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, नाउ ही हैज 330 days to now prepare a resolution plan and get it approved from the committee of creditors. 330 days में ही इस IRP को एक रेजोल्यूशन प्लान बनाना है और अप्रूव कराना है इन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कितने वोट्स चाहिए? हमने देखा था कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में ऐसे हैं, फॉर एनी रेजोल्यूशन प्लान टू बी अप्रूव्ड, फॉर एन आरपी टू बी अप्रूव्ड, यू नीड 66% वोट्स इन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. अगर 66% वोट्स मिल गए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में तो ठीक है, नहीं मिले फाइन तो मेक अनदर प्लान. फाइनली कुछ भी नहीं हुआ तो लिक्विडेशन एंड रिकवरी. इससे अच्छी बात क्या है आईआरपी, सबसे बढ़िया बात क्या है आईबीसी में, दैट देयर इज अ फिक्स्ड टाइमलाइन. तो हमने क्या कहा था, दैट ए बैंक शुड बी एबल टू रिकवर दिस कोलैटरल, सेल दिस कोलैटरल एंड डू रिकवरी क्विकली, राइट? अब ये तो इसमें हो रहा है क्योंकि टाइमलाइन फिक्स्ड है. एनसीएलटी को 14 डेज में एक्ट करना है, रेजोल्यूशन प्लान 330 डेज में बनना है. अगर आज कोई लोन एनपीए हुआ तो विद इन 1 ईयर, 330 डेज इज अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर, विद इन 1 ईयर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. बैंक इज नॉट एन एक्सपर्ट इन सेलिंग दिस कोलैटरल. बैंक एक्सपर्ट नहीं है कोलैटरल बेचने में, कोलैटरल को यूज करने में, राइट? बट यहां पर बैंक को वो काम करना ही नहीं. बैंक को तो बस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठ के हाँ ना बोलना है. काम करने के लिए एक एक्सपर्ट है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, वो करके देखेगा. एंड थर्ड, दिस आईबीसी एंश्योर्स that I will put my best efforts. I will put my best efforts in resolving this. Whatever debt I have, मैं best efforts करूंगा कि मैं पैसे वापस कर सकूं. क्यों? Because if I don't repay and IBC starts, तो मुझे अपनी ही कंपनी से, मैनेजमेंट से निकाल दिया जाएगा. इससे बड़ी मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना. मैं एक कंपनी चला रहा हूं, मुझे ही मेरी कंपनी के मैनेजमेंट से निकाल दिया. थिंक ऑफ द साइकोलॉजिकल टोल दिस टेक्स ऑन पीपल. एंड बिकॉज ऑफ दैट अंडर आईबीसी, बिकॉज ऑफ दैट पीपल जनरली डोंट डिफॉल्ट, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आईबीसी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, वंस आईबीसी प्रोसीडिंग स्टार्ट्स, आई विल बी रिमूव्ड फ्रॉम माई ओन कंपनी. तो पीपल जनरली से कि यार मेरे को मेरी कंपनी से मत निकालो, मैं करता हूं रीपे. People generally make their best efforts to repay whatever they can under IBC. These are the basic ideas behind insolvency and bankruptcy code, right? अब यहां पर एक दो और arrows हैं. पहली बात, IBC does not apply when you are a willful defaulter or you are an incapable defaulter. willful defaulter का तो मतलब हमें पता है, और इनकेपेबल मतलब कि आपके पास कोई भी एसेट्स नहीं है, आपकी कंपनी चल ही नहीं रही है, राइट? अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हो, आपने कोई डाइवर्जन किया है, कोई क्राइम किया है, आईबीसी इज नॉट फॉर क्रिमिनल्स, इट इज फॉर जेन्युइन केसेस व्हेन पीपल आर अनेबल टू पे बिजनेस लोन्स, राइट?
So if you are a willful defaulter or an incapable defaulter, you will not be getting this provisions under IBC. Second, अगर कंपनी है तो आपको NCLT के पास जाना है. अगर इंडिविजुअल या पार्टनरशिप है तो आपको जाना है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास. डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल वी हैव सीन सेट अप अंडर RDTP एक्ट. मैंने यहां कंपनी का एग्जांपल लिया था. तो कंपनी है तो यू गो टू NCLT, बट अगर इंडिविजुअल है या कोई पार्टनरशिप है यू गो टू डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल. राइट. अब देखो, अब this insolvency regime and the Chakravyuh challenge of the Indian economy, this was the idea given in the economic survey of I think 2017 के economic survey में दिया है. It was very relevant then. We will study it in GS3. I just gave it here कि आप अगर पढ़ना चाहो तो इसको एक बार रीड कर सकते हो इन नोट्स को, बट उतना relevant अब नहीं है. Although in GS3 I will teach you this, I will teach you the analysis of IBC in detail in GS3 because मैंने आपको कहा है I am expecting in the next 2 to 3 years there will be one question on IBC. तो जब हम GS3 करेंगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके मेंस के पॉइंट को, बट just this page you can try and read this page on your own. नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, we will read it in GS3. अब देखो अभी हमें ये समझ आया कि IBC की प्रोसेस क्या है. राइट. वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ IBC कि अच्छा यार ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा. सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें समझ आई हैं. वी हैव टेकन अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ IBC. जितना मैंने आपको अभी तक बताया है, अगर आपको इतना याद है, इफ यू रिमेंबर दिस मच, योर जॉब इज डन. ठीक है, आपको इतना याद है तो योर जॉब इज डन. राइट. यहां तक समझ आ रहा है? टिल हियर इज द प्रोसेस क्लियर? इज द प्रोसेस ऑफ IBC क्लियर टिल हियर? ठीक है, हमने अभी प्रोसेस समझी है. वी हैव जस्ट अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ IBC. नाउ वील अंडरस्टैंड द वेरियस पिलर्स अंडर IBC. अब यहां से ये जो नोट्स हैं थोड़ी अलग हैंडराइटिंग है. दिस इज नॉट माय हैंडराइटिंग, दिस इज समबडी फ्रॉम माय टीम. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? You have to read these notes, but I'll tell you इसमें लिखा क्या क्या है. I'll give you a quick summary of these notes. इसमें आप कुछ नहीं है, you just have to understand कि यहाँ पर क्या चीज लिखी है. I have told you the entire thing that I had to explain to you. Committee of creditors, etc. ये हमने सब देख लिया है. ये जो benefits और challenges of IBC हैं, ये हम GS3 में देखेंगे. This you can read for me. अब ये जो नोट्स में लिखा है, इसमें हम समझ लेते हैं कि इस नोट में हम बताया क्या है. हमने पूरी प्रोसेस देख ली. वी हैव सीन द एंटायर प्रोसेस. लेट्स नाउ सी व्हाट द IBC इज ऑल अबाउट. ये कहता है, ये नोट्स, ये दीज आर फ्रॉम सम इकोनॉमिक सर्वे. आई एम फॉरगेटिंग 2019 में या 2018 में एक बार IBC पे बहुत डिटेल में डिस्कशन आई थी. राइट. दीज आर फ्रॉम दैट इकोनॉमिक सर्वे. जब IBC जस्ट आया था, 16-17 में आया था, तो तब की डिस्कशन है. ये कहता है कि देखो, अभी आपने प्रोसेस देखा IBC का. देयर आर 4 पिलर्स. 4 पिलर हैं IBC के. पहला है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. हमने देखा था इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. जनरली दोनों काम एक ही बंदा करता है, तो उसे हम कह देते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. कभी कभी सिर्फ IP भी कह देते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स इन दिस एंटायर प्रोसेस. पूरी प्रोसेस में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स. हु इज दिस पर्सन? अ रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड प्रोफेशनल. A regulated and licensed professional who manages and oversees corporate insolvency resolution process. नाम से ही क्लियर है. कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी से रिलेटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रोसेस को ओवरसी करने वाला एक इंसान. ठीक है. अब ये तो एक इंपॉर्टेंट पर्सन है. राइट. अब देखो, अगर किसी को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है, इफ समवन हैज टू बी एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, पहले तो दिस पर्सन नीड्स टू बी क्वालिफाइड. अब मुझे तो उठा के नहीं भेज सकते,
यू कैन रीड द केस ऑफ, एक और होमवर्क ले लेना अगर इंटरेस्ट है तो, एसआर स्टील एंड मित्तल स्टील, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट success stories of insolvency and bankruptcy code. You can read about them. SR Steel and Mittal Steel. अब एक केस क्या है? What is one case? One case is that there is this insolvency professional. They need to be a qualified person. अगर ये qualified नहीं है तो पूरी प्रोसेस फेल हो जाएगी. तो इस insolvency professional को qualifications देखने के लिए there is something called an insolvency professional agency. ये वो एजेंसीज हैं that enrolls and regulate insolvency professional. बेसिकली आपको अगर insolvency professional बनना है तो आपको इनमें से किसी एक एजेंसी से सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, तब हम कहेंगे कि आप एक क्वालिफाइड लाइसेंस्ड रेगुलेटेड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो. ठीक है, कौन कौन सी एजेंसीज हैं ये? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. तीन बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स. ये तीन बॉडीज हैं. इन तीन बॉडीज में से बेसिकली आपको लाइसेंस लेना है. यू हैव टू टेक लाइसेंस इफ यू वांट टू बिकम एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. अब इस आईपीए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को लाइसेंस देती है, इनके क्या काम है वो यहाँ पर लिखे हैं. जस्ट रीड दिस वंस, डोंट नीड टू रिमेंबर. ये जो टाइप यहाँ पे लिखा है इसको रिमेंबर बिल्कुल भी नहीं करना है. जस्ट रीड दिस वंस, एक बार इसको रीड कर लीजिए. रीड दिस वंस टू गेट अ ब्रॉड आइडिया. अब सेकंड थिंग, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होना है या नहीं, मेरे को दो चीजें चाहिए. पहले तो मेरा जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है ये क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए. ये तो मुझे चाहिए ही, that this needs to be a qualified person. इसके लिए मेरे पास कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी. सेकंड मुझे ये चाहिए भाई, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करना भी है या नहीं करना है. क्या जरूरत भी है इस चीज की कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट हो? ये कौन डिसाइड करेगा? कोई जुडिशरी में ही डिसाइड करेगा, कोई जज ही डिसाइड करेगा. सम जुडिशियल अथॉरिटी विल डिसाइड. The judicial authority here is called adjudicating authority. Under insolvency and bankruptcy code, इनका नाम है adjudicating authority. Adjudicating means to decide. To decide. Now, in this adjudicating authority, the example here is of National Company Law Tribunal for companies, Debt Recovery Tribunal for individuals. ये जो NCLT और DRT थे ऊपर, इनको हम कहते हैं adjudicating authority. आगे देखते हैं. Just one thing. मैंने आपको बोला कि सी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नीड्स टू बी अपॉइंटेड. आई वांट टू मेक श्योर कि ये क्वालिफाइड इंसान है, तो एक कोई बॉडी होनी चाहिए जो इसकी क्वालिफिकेशंस देखे, और एक हमें ये देखना है कि सही टाइम पे अपॉइंट होना भी है या नहीं होना चाहिए, ये कोई जुडिशियल बॉडी देखेगी. ये तो बताने का तरीका है, ये टीचिंग का तरीका है. इसी पॉइंट को लिखने का क्या तरीका है? The appointment of a regulated and licensed insolvency professional needs oversight. One, it needs regulatory oversight. Second, it needs judicial oversight. For regulatory oversight, we have insolvency professional agency. बात वही है जो मैं आपको कह रहा था. इंग्लिश लिखने का तरीका देखो, ऐसे मेल्स में नंबर आते हैं. For judicial oversight, there are adjudicating authorities. आगे देखते हैं. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ट्राइब्यूनल्स दैट एडजुडिकेट अंडर द आईबीसी. एडजुडिकेट मींस टू डिसाइड. ट्राइब्यूनल्स जो डिसाइड करते हैं कि आईबीसी लगाना है या नहीं लगाना है. फॉर कंपनीज इट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. फॉर इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फॉर्म इट इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल. सो डीआरटी फॉर इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज फॉर एनसीएलटी. अब मान लो कि एनसीएलटी ने कोई डिसीजन दे दिया. एनसीएलटी ने डिसीजन दिया कि हाँ यार, वी नीड टू स्टार्ट आईबीसी प्रोसीडिंग्स. आपके पास, मैं कंपनी ओनर हूं, एनसीएलटी ने मेरी कंपनी के अगेंस्ट डिसीजन दे दिया कि आईबीसी प्रोसीडिंग स्टार्ट करो. आई शुड हैव राइट ऑफ अपील. आई शुड बी एबल टू गो एंड से कि नहीं यार, एनसीएलटी का डिसीजन गलत है, आई वांट टू अपील टू अ हायर बॉडी. जैसे जब लोअर कोर्ट का डिसीजन गलत होता है, वी गो टू हाई कोर्ट. हाई कोर्ट का डिसीजन गलत लगता है, वी गो टू सुप्रीम कोर्ट. तो
एनसीएलटी से अपील जाती है टू नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, इसके ऊपर अपील जाती है टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यहां पर भी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, फिर एनसीएलएटी, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो दिस एनसीएलएटी इज appellate authority wherever you appeal next. Up. Entire point of NCLT and entire point of IBC in this entire process, the entire point was timely completion of process, कि process timely complete हो ताकि recovery better हो सके। अब अगर अपील में टाइम लग गया तो ये सारी प्रॉब्लम दोबारा से आ जाएगी। एनसीएलटी ने 14 दिन में डिसीजन दे दिया, मैं चला गया एनसीएलटी, अब फिर वहां डिले हो रहा है। एनसीएलटी का डिसीजन आया, मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, फिर डिले हो रहा है। डिले वाज द प्रॉब्लम। तो कोड में लिखा है दैट द कोड इज सो ब्यूटीफुली डिजाइन्ड दैट इवन दिस थिंग वाज टेकन केयर ऑफ, दैट सी व्हेन देयर इज एन अपेलेट अथॉरिटी, अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। आपको विद इन 30 डेज अपील फाइल करनी है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो विद इन 45 डेज आपको अपील फाइल करनी है। तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज टाइम्स, आपको टाइमलाइन याद करने की जरूरत नहीं है। You just need to know that even in the case of appeal, a timeline has been prescribed. Timeline दी गई है अपील के केस में भी। अब तो हमने देखा कि यार in the IBC one important pillar was insolvency professional, one important pillar was adjudicating authority, the third important pillar is information utility, IU। information utility क्या है ये देखते हैं। अब अगर एनसीएलटी को प्रॉपर डिसीजन लेना है, इफ एनसीएलटी हैज टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन, इफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज टू बी अपॉइंटेड एंड ही हैज टू क्रिएट अ प्रॉपर रेजोल्यूशन प्लान, फॉर बोथ दीज थिंग्स व्हाट वी नीड इज एक्यूरेट डेटा अबाउट द कंपनी, कि कंपनी में कितनी डेट है, कितने लोन्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी नीड एब्सोल्यूट एक्यूरेट डेटा। The job of the information utility is to maintain high quality authenticated information. High quality की information वो maintain करेगा और आपको बताएगा कि देखो ये high quality information है, this information it will maintain and say let's see this is how NCLT this is how IBC will run and this is the data. So records of debt, records of liabilities, records of assets, instances of default, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में स्टोर होता है। एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इज नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। इनको ये स्टेटस मिला था इन 2017। लास्टली एक पूरा कोड चल रहा है जिसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स भी हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज भी हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज भी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। सो देयर नीड्स टू बी अ बोर्ड हु विल ओवरसी द एंटायर प्रोसेस, जो सब देखेगा कि यार आईबीसी ठीक चल रहा है, ये वाली इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ठीक है, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ठीक है, ये आईआरपी ठीक से परफॉर्म कर रहा है, एनसीएलटी अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं। दिस इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI, which is the overall supervisor of this code। पूरे कोड में कहीं भी प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कुछ चेंजेस भी करने हैं, तो दिस इज द IBBI। इसके फंक्शंस और इसकी कॉम्पोजिशन पे कौन कौन होता है, यहाँ पर कौन होता है, अगेन जस्ट रीड, डोंट नीड टू रिमेंबर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे एमसीक्यू आने के चांस बहुत कम है, आएगा तो किसी से नहीं होगा। नोबडी रीड्स दिस, इट इज जस्ट टू गिव यू अ आइडिया, ताकि अगर मेंस में क्वेश्चन आए तो आपको चीज याद रहे। मेंस में क्वेश्चन इस पे आएगा ही आएगा विद इन सम इयर्स, राइट। अब जो प्रोसेस हमने ऊपर पढ़ी थी, the entire process that I showed you in that flow chart, ये वाली प्रोसेस, this process is called, इसका लीगल नाम है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP। The name of this process is CIRP, ठीक है। अब ये जो CIRP की प्रोसेस है, यही चीज यहां पर अब प्रॉपर डिटेल में लिखी है। अल्टीमेटली आपको वो चार्ट ही याद करना है, राइट, बट यहां पर पूरी डिटेल में लिखी है दैट CIRP इज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर। मतलब एक कंपनी है जो लोन रीपे नहीं कर पा रही। अब देखो यहां लिखा है कौन इनिशिएट कर सकता है, लोन अमाउंट इससे ज्यादा होना चाहिए,
फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन है, फाइनेंशियल डेट क्या है. अब दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस वील सी. देखो देखो, इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री, इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आई एम श्योर यू हैव हर्ड द केसेस, आपने ऐसे बहुत केसेस देखे होंगे कि रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं. रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में होता क्या है, दैट लेट्स से आपको, ये आपका पीस ऑफ लैंड है. पहले तो लैंड ही बहुत एक्सपेंसिव है, लैंड ही बहुत एक्सपेंसिव है. फिर आपको, आपने कहा मैं यहाँ पे 2 टावर बनाऊंगा और हर टावर में मैं इतने ऐसे ऐसे फ्लैट्स बनाऊंगा, आई विल मेक सो मेनी फ्लैट्स. तो लेट्स से एनी कंपनी, M3M एक कंपनी है, M3M comes out with the fact that we will make 500 flats in गुड़गांव. अब जिस दिन ये फ्लैट्स अनाउंस होते हैं, जिस दिन अनाउंस होते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है, M3M ने सिर्फ लैंड खरीदा है, लैंड खरीदा है. जिस दिन ये फ्लैट्स अनाउंस होते हैं, इनकी बुकिंग स्टार्ट हो जाती है. यू कैन बुक योर फ्लैट ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट. ऐसा नहीं है कि पहले फ्लैट बनेगा फिर बिकेगा, नहीं, ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट बुकिंग स्टार्ट्स. आपने बुकिंग कर ली अपने फ्लैट की, राइट, देन कंपनी विल से दैट कीप पेइंग अस मनी. जैसे मान लो आपने आज बुकिंग करी, ये फ्लैट लेट से M3M का 1 करोड़ का फ्लैट है, फ्लैट इज फॉर 1 करोड़, बुकिंग अमाउंट इज लेट से 5 लाख रुपीज. तो आपने 5 लाख रुपीज दे दिया, आपका फ्लैट बुक हो गया. फिर कंपनी कहती है 6 महीने बाद, ओके 6 months have passed sir, please give us 10 lakhs. Okay sir, 12 months have passed sir, please give us 20 lakhs. कंपनी आपसे पैसे लेती है, M3M will take money from you and they will start building these flats. वो बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बहुत बार ऐसे होता था कि कंपनीज पैसे ले लेती थी, होम बायर्स who will purchase this, home buyers will purchase this, home buyers were paying the money to the company, वो पैसे देते थे कंपनी को, एंड बीच में प्रोजेक्ट यूज्ड टू स्टॉल, बीच में ही प्रोजेक्ट रुक जाता था, बीच में ही प्रोजेक्ट रुक जाता था. अब होम बायर्स को बहुत प्रॉब्लम है, पैसा अटका हुआ है, M3M कह रहा है हम नहीं कर सकते कुछ, हम नहीं कर सकते. दिस वाज अ मेजर प्रॉब्लम इन द इंडियन इकोनॉमी बिफोर 2015. इन 2015 2 चेंजेस, एक्चुअली इन 2016 2 चेंजेस वर मेड, और ये आई थिंक 2023 के इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस हुआ था. 2 चेंजेस हुए. सबसे पहला चेंज था द अडॉप्शन ऑफ द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट. रेरा एक्ट अडॉप्ट किया गया 2016 में. ये हमारे से रिलेटेड नहीं है, बट इट वाज अ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट. एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई टू चेक ऑन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स. द सेकंड चेंज दैट वाज मेड इन 2018, forgive me, the second change was made in 2018. तो इन्होंने बोला 2018 में दैट यार IBC प्रोसीडिंग्स है ना, IBC प्रोसीडिंग्स तो है हमारे पास, वी विल इंक्लूड होम बायर्स. जो होम बायर्स हैं उनको भी हम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बनाएंगे. वी विल इंक्लूड होम बायर्स इन द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. सो होम बायर्स विल आल्सो नाउ सिट ऑन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. आपने होम बायर से टेक्निकली एक लोन लिया है कि मैं आपको ये सामान बना के दूंगा, यू हैव टेक्निकली टेकन अ लोन, तो होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. एक्चुअली इट वाज पुट इन एन अमेंडमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दिस अमेंडमेंट इन अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2019. इस अमेंडमेंट में होम बायर्स को भी बना दिया फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. इससे फायदा क्या हुआ, अब होम बायर्स भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठ सकते हैं, होम बायर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं IBC प्रोसीडिंग्स. ऑपरेशनल डेट हमने देखा, NCLT इवैल्यूएट्स द एप्लीकेशन, मॉरेटोरियम कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन कौन बैठता है, वोटिंग कैसे होती है COC में, एक्सेट्रा. नाउ दिस वाज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो हमने ऊपर देखा. there is a slight variation to this. इसका एक slight variation है called pre-packaged insolvency resolution process, PIRP. हमने क्या देखा था अभी, corporate insolvency resolution process. This is mainly for big companies. But for micro, small and medium enterprises, how they are defined, MSME की definition क्या है हम देखेंगे. For micro, small and medium enterprises, for MSMEs, there is the pre-packaged insolvency resolution process. अब नाम से देखो, pre-packaged मतलब
प्री डिसाइडेड। अब ताकि एमएसएमई, देखो एमएसएमईज क्या है, एमएसएमईज आर स्मॉल फर्म्स, ऑल्दो दे आर स्मॉल फर्म्स, बहुत छोटी छोटी फर्म्स हैं, राइट, दे आर अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ इंडियाज एम्प्लॉयमेंट एंड आवर एक्सपोर्ट्स। आपने वो भी देखा था दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड वी नीड टू नरिश आवर ड्वार्फ्स, नरिश ड्वार्फ्स टू बिकम जायंट्स। Remember this? This was a heading of one economic survey. India needs to nourish its dwarfs to become giants. Exactly the discussion here was about MSMEs. तो MSMEs को हमने ये ऑप्शन दिया है कि सी आपने लोन लिया है, मैं एक MSME ओनर हूं, rather than going through this elaborate process, मेरी पूरी बेइज्जती होगी इसमें कि मेरे को अपनी ही कंपनी से निकाला जा रहा है, मैं लोन नहीं रीपे कर पा रहा। इन केस ऑफ MSMEs to give them some special protection, हमने MSMEs को ये ऑप्शन दिया है दैट सी अगर आप एक MSME हो तो आपके केस में हम इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अडॉप्ट करने से पहले आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपने ही डेटर्स से, आप डेटर्स और क्रेडिटर्स आपस में ही, मैं MSME हूं, मैंने लोन लिया है बैंक से, तो मैं अपने बैंक से पहले ही एक प्रोसेस अग्री कर लेता हूं कि यार अच्छा इसको हम ऐसे रिजॉल्व करेंगे। वी विल हैव अ प्री पैकेज्ड, पहले से ही पैकेज किया हुआ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ताकि आपको ये पूरी होल दिस होल ऑर्डील यू डोंट हैव टू गो थ्रू। ऑर्डील यहाँ पर क्या है कि पहले आईबीसी एक्सेप्ट होगा एनसीएलटी में, फिर आईआरपी अडॉप्ट होगा, आईआरपी आएगा, आईआरपी आके अपना रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा, फिर वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में वोटिंग कराएगा। आप एक एमएसएमई हो, आप एक छोटी फर्म हो, अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है, इफ यू हैव हैड सच अ प्रॉब्लम, यू कैन हैव दिस ऑप्शन ऑफ डायरेक्टली टॉकिंग टू योर क्रेडिटर्स जिन्होंने आपको लोन दिया है। आप डायरेक्टली उनसे बात कर लो और प्रॉब्लम सॉल्व करा लो, राइट? ठीक है। अब these are the benefits of IBC, and this again I would want that you read, जैसे मैंने आपको एक चीज यहां पर बताई थी, there is something called healthy credit culture. I had used this term in your class. I think this is the exact discussion in this year's economic survey about IBC. जब मैं आपको GS3 पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसको एक बार रीड जरूर करना। The discussion that happened was that because there is a threat, because business owners have this threat that if I go for, if I don't repay my loans, if I don't run my company properly और मैं लोन वापस नहीं कर पाया, right, तो मेरे को ही अपनी कंपनी की मैनेजमेंट से निकाल दिया जाएगा। And if I am removed from the management of my own company, I will not be okay with it, right? Because my company is my pride. So merely the fact that IBC can lead to a removal has led to fear in the eyes of people. And when there is a fear, they try and make their best efforts to repay their debt. And therefore, IBC ensures that company owners make their best efforts to repay debt, and these best efforts have then led to healthy credit culture in the country. इस चीज को लेके डिस्कशन है। We will discuss IBC when we come to GS3. जब GS3 की बात करेंगे, then I will teach you IBC and I will also show you a couple of questions and I also give you some examples कि अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया तो आपको आंसर कैसे लिखना है। Now, this is the last thing which was about NBFCs. I will not teach this. This you will read. I hope आपने अभी तक पढ़ लिया हो, although I am almost sure कि आपने नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें इन्हीं पेजेस से एक क्वेश्चन होगा, पिछले टेस्ट में मैं डालना भूल गया। नेक्स्ट टेस्ट में इन पेजेस से क्वेश्चन होगा, लेट्स सी कितने लोगों का सही होता है, गलत होता है। देयर बी वन क्वेश्चन फ्रॉम two questions from these pages in the next test. If you read this and understand this, up to you. बोर्ड पे जो लिखा है अभी उससे एक क्वेश्चन है, जो चीज अभी बोर्ड पे लिखी है जो दिख रही है उससे एक क्वेश्चन है अगले टेस्ट में। अगर पढ़ के आओगे तो आंसर होगा, नहीं पढ़ के आओगे तो आपकी एक अवॉइडेबल मिस्टेक बढ़ जाएगी। Now we have discussed in detail the idea of insolvency and bankruptcy code.